السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر تشریف رکھتے ہیں اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ نظام سکا۔ راہ بھائی انکر ہے، میرے ساتھ کوئی جاہو جلال نہیں ہے، میرے ساتھ تو میری زال ہے، اور ساتھ میرا بیٹا ہے سمسو، اور بیٹی ہے میری بہار بانو۔ بس اپا بادشاہ اسی بھی تواڈے نال ہی ہیں، اسی ایتھے کٹن کراؤن لئی نہیں آئے۔ گستاخ، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں تیری گردن اتار دیتا۔ راہ سمسو کو عقل کو ہاتھ مارے، چند گھنٹوں کے بعد بادشاہت ختم ہو جانی ہے۔ یوں نہ ہو بادشاہت ختم ہو جائے، بعد میں یوہی وزیر نے بار محل کے گیٹ کے پاس تنے لٹایا ہو اور تیری گردن پہ گوڈا رکھا ہو۔ گوڈا اس کا دیکھ رہا ہے کتنا ہے۔ مجھے تو یوں لگے ہے کہ آدھا سرکاری خزانہ اس کے ایک گوڈے میں ہے اور باقی آدھا دوسرے گوڈے میں۔ کہاں سے تلوار ہوتی تو گردن اتار دیتا۔ بادشاہ سلامت، آپ کا ایک ہی بیٹا، اس کو تلوار لے ہی دیں۔ کیا بتاؤں تلے، ایک دفعہ تلوار لے کے دی، سسرے نے بیچ کے پتیسا لے لیا۔ دوسری دفعہ تلوار لے کے دی، ساتھ میں نے ڈانٹا خبردار اب بیچی تو تلوار کے ساتھ گلیوں میں ٹیر چلاتا پھرے نہ مرا۔ یو سسرا تو ماسکی کا بیٹا ہے، تلوار کا مس یوز ہی کرے گا نا۔ ویسے پا بادشاہ کیا پا بادشاہ راہ، میں دربار میں بادشاہ لگا ہوا ہوں، میں دربار کی کنٹین والا نہیں ہوں۔ بادشاہ سمندری سے اوہو، اچھا یار گل تے سن۔ رب بکواس کر کے کہنا تم نے۔ اچھا میں کہنا یہ چاہنا کہ بندے نو عقل ہونی چاہیے، بادشاہت تے ایک دن دی بھی بڑی ہے۔ سہیل برائن صاحب بھی تے ایک دن دنیا دے نال کر دے نے۔ رب جیر، یہ کیا بدتمیزی کر رہا گستاخ۔ انقلاب۔ بادشاہ سلامت نہ غصہ کرو، یہ دی تون لین والی ہے ہی نہیں۔ یار میں گستاخی نہیں کر رہا، میں تے تینوں سمجھا رہا۔ اس کا لبو لہجہ تو بالکل ہی میرے منجلے ساڑے جیسا ہے۔ یو تم نے کیوں نہیں بتایا کہ یو بھی تیرا بھائی ہے؟ شمسو کے ابا جب بادشاہی مل جاتی ہے تو ہر ایرا گیرا بھائی بن جاتا ہے۔ ایرا گرا بھابی مینوں کہہ رہی۔ وہ ملکہ نو بھابی، بادشاہ نو بادشاہ، وہ کیوں انہیں چول کھا لینا، تینوں ہوش نہیں رہندی ہے؟ یو تو بتاؤ یہ ہے کون؟ بادشاہ جی وزیر پانی و بجلی۔ آج کل بجلی ہے کوئی نہیں، ویلا لنگر جو بڑھایا رہندا ہے۔ تو لنگر دے وچ کیڑا روٹی نہ بجلی کھانی ہوندی ہے؟ بجلی نہیں ہے تے کچھ نہ کچھ تے کرنا چاہیے۔ ارے پکڑا ذرا لے جا، اس کی میں جردے کی دیگ پھاڑ دوں۔ تو تے پانی اور بجلی والا؟ جی سرکار۔ صبح کا 200-250 بندہ آ گیا اور بادشاہ کے سامنے چیخ رہا بیچارہ، کیوں نہیں دیتا بجلی عوام کو؟ یار پریشان کیوں میں، اگلے سال دا لارا لا دے۔ پہلے بتا، میں نے کیا بتا تھا، میں غصہ کر گیا ہوں میں۔ شہنشاہ معظم، عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ آج ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6200 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا ہے۔ 6200۔ کیوں ہے بے جھوٹ بول رہا، کدھر نکل گئی ہیں چیخیں؟ میں نے تو کوئی چیخ نہیں سنی عوام کی۔ یہی تو مسئلہ ہے شہنشاہ معظم کہ آپ نے اپنے محل کی دیواریں اتنی اونچی کر لی ہوئی ہیں کہ آپ کو عوام کی چیخیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ تو ہمیں لمبے چکروں میں ڈال رہا ہے، کون سا حساب کتاب سنا رہا ہے؟ یہ مشورہ ٹھیک دے رہا ہے، اگلے سال کا لارا لگا کے اپنا ٹائم تو نکال لے۔ چھوڑ ان کی باتوں کو، میں نے کہا بات سن۔ ہاں شمسو کے ابا، بڑا جی چاہتا، بڑی خاص ہے میری ساری زندگی کی، کسی وقت اللہ 4 پیسے دے دے تو چھوٹے پائے بکرے کے پکا کے کھلا مجھے۔ اس وقت محل میں آئے ہوئے ہیں، پکا دی آج چھوٹے پائے۔ ہائے ہائے ہائے، صدقے جاواں بھابی جی، شوربہ زیادہ نہ کرنا، ذرا گاڑا گاڑا رکھنا، کیونکہ انگلیاں جڑن گی ہیں تے مزہ ہونا ہے۔ اتنا تنے انگلیاں جوڑنے کا شوق ہے تو سری پائے کس لیے کھانے ہیں؟ دعا کر فالج ہو جائے انگلیاں، کیا پورا باجو ہی جڑ جائے گا؟ بادشاہ جی پاوے جے وڈے پکا لو تے سارے ہی کھا لیں گے اسی۔ ہم یہاں حکومت کر رہے ہیں، کوئی ہوٹل نہیں کھول رکھا، میرے پاس تلوار ہوتی تیری گردن اتار دیتا۔ لے یار تلوار نہیں ہے تیرے پاس، تلوار نہیں، کر لا جو کرنا ہے۔ راورے پکڑا نہ مراد،
खबरदार किसी की गर्दन उतारी 302 लग जाएगी, फिर कहाँ बादशाह बेचारा बेटे को रोटी देने के लिए जेल जाया करेगा। बादशाह टाइम जाया ना कर, पावे का ऑर्डर कर। शाही बावर्ची को हुक्म दिया जाता है कि वो 1 दर्जन छोटे पाए बादशाह सलामत बड़े कर लो। 1 दर्जन छोटे पाए बड़े साइज के पका के पेश किए जाए। लो वही बात हुई ना, आप लोगों के शोर में बादशाह का टाइम ही खत्म हो गया, टल बज गया। नहीं बादशाह सलामत, टाइम नहीं खत्म हुआ, ये कोई फरियादी आया है, क्या मतलब? आपको फरियाद सुनाएगा। हमें फरियाद सुनाने के लिए आया कोई? हाँ जी। रात जल्दी बुलाओ उसको। बादशाह बेचारा तो यूं ही बैठा हुआ था, दरबारी तो अब बाने शुरू हुए हैं। बुलाओ जरा, कौन है फरियाद करने आया? हाजिर हो। बादशाह सलामत, ताड़ी हुकूमत कोई धौन ना लथे ते की फायदा? ए बिलाल ने धौन आसान जी है। पूरा इसकी गर्दन क्यों उतार दे? बादशाह सलामत, इसकी हाजिर हो लंबी नहीं है। दोहाई है आलमपना, दोहाई है, दोहाई है आलमपना, दोहाई है। राव वजीर जी, इसे समझाओ, यो दवाई मांग रहा है, हम मास्की हैं, डॉक्टर नहीं है। अब्बा हुजूर, हम मास्की नहीं बादशाह हैं। रात चुप करना मुराद, इस तरह के सोखे सजादे बादशाह को मरवाते हैं। आरजी तौर पे बादशाह बना होता है, किस लिए पक्का हो रहा है? अच्छा शहंशाह मुअज्जम, फरियादी की फरियाद तो सुने ना। क्या कहता है फरियादी बेटे? गजब हो गया आलमपना, गजब। रब बता तो सही, क्या गजब हो गया? किसी ने तुम्हें बगला समझ के सरला मार दिया या तेरी लगाई ने तेरे पर खींच दिए हैं, तुझसे अब उड़ा नहीं जाता, या गुजरांवाला से गुजरते हुए किसी ने पकड़ के तन्ने सीख पे चढ़ा लिया है? बता तो सही, क्या गजब हो गया? शहंशाह मुअज्जम, इससे भी बड़ा जुल्म हुआ है आपकी रियाया पर। लो भाई, जूते ही खा के आया कहीं से। क्या हुआ है बताएं। हुजूर, मेरे घर में सिर्फ 1 पंखा और 2 बल्ब जलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र कर, 1 पंखा है तो सही। मेरे पास तो 1 पंखा भी नहीं है। मैंने तो ठंडी हवा लेनी हो तो तेरी चाची के पास बैठ जाता। क्यों, मलका आलिया GFC की हैं? बदतमीज आदमी, मलका की कंपनी ना देख, अपनी फरियाद सुना। सरकार, 1 पंखा और 2 बल्ब हैं। सड़ गए हैं। नहीं सरकार, 14,000 अशरफी का बिल आया है। 14,000 अशरफी का बिल? तुमने क्या छत के साथ ताहिर अशरफी लगाया हुआ है? शहंशाह मुअज्जम, आपकी सल्तनत में पिछले साल के इब्तदाई 4 महीनों में आपका जो इदारा है ना वफाकी मोहतसिब का, उसमें 20,000 कुल दरखास्तें मौसूल हुई हैं सारे महकमों के बारे में। उसमें से 14,000 दरखास्तें जो थी सिर्फ वापटा की ओवर बिलिंग की दरखास्तें। देखा तन्ने, 1 पक्का और 2 बल्ब है और 14,000 अशरफियों का बिल आ गया। तै रोज कहती है मैंने वाशिंग मशीन ले दे। हाय हाय, हाथों से कपड़े धो धो के मेरे हाथ सख्त हो गए हैं। मैंने क्या बताती है हाथ सख्त हो गए हैं? मुझसे ज्यादा किसको पता हो सकता है तेरे हाथ कितने को सख्त हो गए हैं? मेरा मतलब है मेरे हाथ अकड़ गए हैं। किसी दिन बहुत ज्यादा कपड़े धो ताकि तू सारी अकड़ जाए। रब खुदा का शुक्र कर, अल्लाह ने गुजारा करने के लिए तौफीक दी हुई है। ये देख अवाम किस तरह बिड़क रही है। दुहाई है आलमपना, 12,000 मेरी तनख्वाह और 14,000 अशरफी मुझे बिल आ गया है। ये तो वाकई बहुत बड़ा जुल्म है। बादशाह ने जानना इनू, इन्हें नाल दे नू कनेक्शन दिता है, उन्होंने जराबां बनाउण वालियां मशीनां लाइयां ने सरकार। हैं? हाँ जी। बादशाह सलामत, ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨੇਲ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ओए हाथी दे 2.5 महीने दे बच्चे, क्यों गलत रिपोर्टां दिना पिया? मेरे ते अगे पीछे सज्जे खब्बे कोई कार ही नहीं गा। आलमपना, अवाम बिलक रही है, अवाम शिकायत के अंबार लिए है। वो ना हो कि एक दिन उनके हाथ आपके गिरेबान तक हो। खुदारा कुछ कर लीजिए। बादशाह का गिरेबान? बादशाह ऑर्डर करो, मैं इसकी गर्दन उतारूं। रब बकवास ना कर, गर्दन उतारूं? कभी किसी की गर्दन उतारने चल पड़ते हो, कभी किसी की। रब खुदा के लिए बिजली का कुछ करो।
योड़ा हो के बाकी अवाम हमारी गर्दन को आले। ਉਹ ਛੱਡ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਭਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ यूपीएस ਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਖਬਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, शहनशाह मुअज्जम ने 600 मेगावाट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। ते अवाम सुकून दे नाल हो जाएगी सरकार। यो तो बाकी तेरा मंजला भाई लग रहा है। तेरा मंजला भाई भी इसी तरह लारे लगाए रखे बन्ने। शादी वाले दिन भी मैंने कहता था फिक्र न कर भाई, बहन मेरी ठीक हो जाएगी। 28 साल गुजर गए, तैना ठीक हुई। तो शादी के वक्त बल्कि आलिया के साथ क्या मसला था? राको एक मसला हो तो तुमने बताओ ना। क्या? वो निकाह खान ने पूछा कबूल है कबूल है कबूल है, तो आगे से जवाब देने की बजाय शुरू हो गई ब्रम ब्रम ब्रम। बादशाह सलामत, ए खुसा पालो पैरी, 3-4 जोड़ियां गायब हुई आजकल च। शाही दरबार से जूता कौन उठाता है? मैं। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, जूतियां उठाते हो? इन लोगों को शर्म आती हो तो इस तरह आवाम बिलकती फिरे। ले भाई जाके जमा करवा, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, यो तो आ गया है। बादशाह सलामत, मैं किस तरह इतना सारा बिल जमा करवा दूं इकट्ठा? खुदारा इसकी कम से कम किस्तें ही कर दे। रामा बादशाह हूं या लैंड सुपरिटेंडेंट हूं? किस्तें कर दूं? आप वक्त के बादशाह हैं, कोई आसानी पैदा कीजिए। कर देता हूं, चलो 4 किस्तें करवा लेगा? जी। लो ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਤੇ ਹੀ ਭਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। जिए आप हजूर जिए, जिए आप हजूर जिए। ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚ ਨਾ ਪੈ ਭਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ओवर बिलिंग करके ही तो असी हुकूमत के सारे खर्चे चलाने ने। ये बात शहनशाह मुअज्जम सिर्फ कराची शहर में के इलेक्ट्रिक ने पिछले चंद बरसों के दौरान शहरियों से 62 अरब रुपए 62 अरब रुपए ओवर बिलिंग की मद में हासिल किए हैं। लो बताओ, शमसू की अम्मा सुन रही है क्या आवाम की हालत हुई है? और जो सुसरा वजीर गलत गलत मशवरे दे रहा मन्ने, कह रहा यूपीएस की फैक्ट्री का इफ्तिताह करवा देता हूं। बादशाह जी ਇਹਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ। वाकई? ਪਿਛਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾਤੀ ਇਹਨੇ। वो कैसे? ਰੋਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਲਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਲਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਨ ਵਾਲੇ ਖੋਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। यो तो बड़ा खतरनाक वजीर है। ऐसा वैसा बादशाह बहुत खतरनाक है। बादशाह कुक ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਡਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਕਾ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜਕੱਲ। ਉਹ ਕੁੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਕੁੱਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਿਸ਼ ਦੱਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੇਸ਼ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਲਾ। सुरेश गोश्त? ਬਸ ਖਾਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ। फिर ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਭਿੱਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿਤੇ। यो तो बड़ा जालिम आदमी है। ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, हाँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਲਵਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਦੇਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। गुस्ताख, बेअदब, इसे हाथी के पांव के नीचे कुचल दिया जाए। ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲੋ ਇਹਨੂੰ। फिर ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਥੀ ਤੇ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार एक बड़ी देर से एक कहावत सुनते आ रहे हैं, चोर मचाए शोर। आजकल इस कहावत का 400 मुजाहरा हो रहा है। 90% जो हमारे लोग हैं ना जी, खास तौर पे पॉलिटिशियंस,
वो जिस महकमे में जिस का केस है ना उसको वो रगेद रहे होते हैं और दूसरे महकमे की तारीफ कर रहे होते हैं। अगर किसी का पुलिस में केस है या पुलिस उसकी बात नहीं मान रही तो वो पुलिस की ऐसी तैसी फेर रहा है। अगर किसी का रेंजर वालों के पास केस है, वो रेंजर वालों के खिलाफ जरूरत नहीं होती तो किसी ना किसी हवाले से जरूर बात कर रहा होता है। अगर किसी को नैब ने पकड़ा हुआ है या नैब के पास किसी की फाइल खुली हुई है तो वो कह रहा है कि नैब का फिटे मुंह। ये सूरत हाल देख के मुझे वो चोर की बात याद आ जाती है जो कहीं पे नकब लगाता है तो तिजोरी देखता है तो तिजोरी पे लिखा होता है कि तिजोरी खोलने के लिए आप बाएं हाथ वाला बटन दबाएं। वो दबाता है तो सायरन बज उठता है, सायरन बजता है, पकड़ा जाता है, अदालत में उसको लेके जाते हैं तो जज पूछता है कि तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? कहता है मी लॉर्ड मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया बहुत धोखेबाज है। ये गलत चीज ऊपर लिख दे। ये मेरा ख्याल है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना चोर मचाए शोर, इसका रिएक्शन पब्लिक की तरफ से आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पब्लिक का रिएक्शन जाहिर है इलेक्शन में होता है। हाँ जी। वो लोग जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो लोग जिनके ऊपर करप्शन और पता नहीं क्या क्या, अब देखो ना एक स्यापा पड़ा हुआ है पुलिस की आईजी का सिंध के अंदर। यार कोई ये मजाक है? आपके जो लॉ एंड ऑर्डर का महकमा है जिसने हैंडल करना है उसके हेड को आपने बिल्कुल लाटू समझा हुआ है। कोई उधर को उसे कमा रहा है, कोई उधर को कमा रहा है, वो भी बेचारा चीख रहा है, नवा नहीं लग रहा, नहीं लगने देंगे, केस हो गया है। यहाँ पंजाब में भी वही हो रहा है, आईजी का स्यापा पड़ा हुआ है। और जिस मैं हैरान हो गया हूँ ये देख के कि बिल्कुल अब तो बबांगे दोहल लोग जो है ना जी वो सामने आके तो गालियां निकाल रहे हैं, जबकि कसूर अपना है, जबकि केस अपना है, करप्शन अपनी है, गलती अपनी है, उसके बावजूद शोर मचा रहे हैं। हद हो गई आमान से। मैंने तो कई दफा गुस्से में अपने पैर पे हल्की सी इट भी मारी। जब मारनी है तो फिर हल्की सी क्यों? बात अच्छी यार, दर्द फिर ज्यादा होती है ना, मैं बस इट पकड़ के ऐसी हल्की सी लगा लेता हूँ ताकि मैं कह सकूं कि मैंने तो गुस्से में पैर पे इट कट मारी। वैसे इट बच्चे पैर पे तो बंदा भुड़के ना मजा नहीं आता। अजीज जी आप मारे ना, आप यहाँ से पकड़ के और छोड़ दें। यार तुम दोनों बंदे ठीक नहीं हो, मैं तुम्हें बता दूं। महल्ले में तुम कहते हो कि ये हम तीनों इकट्ठे हैं, चल के जुनैद सलीम का मुकाबला करेंगे। इधर आकर तुम मेरी बेइज्जती शुरू कर देते हो, उसकी तरफ क्यों नहीं होते? बस सहाफी है, डरते हो उससे? जी सुने, सदर ममनून हुसैन कहते हैं बदनवान शख्स से बदबू आती है, ज्यादा देर साथ नहीं बैठ सकता। हाय 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 हाय, देखो ये क्या क्वालिटी है ममनून साहब में। कह रहे हैं बदनवान शख्स यानी करप्ट शख्स से मुझे बदबू आती है, तो इनको तो फिर सदर की बजाय नैब का चेयरमैन लगाना चाहिए। यार मुझे समझ नहीं आती, अगर ममनून साहब को करप्शन से इतनी बदबू आती है तो वो ऐवान सदर में रह कैसे रहे हैं आज तक? यार उन्होंने उधर जाने से पहले स्प्रे करवा लिया था, लुबान की धुनी दी होगी। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लग जाते नैब में तो ज्यादा अच्छा होता। रोज जाके किसी एक दफ्तर में बैठते और वहां से उठते तो पता चल जाता है थे कौन कौन करप्ट थे। साथ अपने लेके जाते ना सबॉर्डिनेट, और वो चेक करते रहते इनके नाक और भवों को, किससे देख के तो बमें चढ़ाएंगे, फौरन उसको गिरफ्तार कर लेंगे। सदारत में बैठ के तो फिर उन्होंने ये अपनी क्वालिटी याया कर दी है। हालांकि देखो मैं ये सोचता था कि यार ममनून साहब कहीं नजर नहीं आते, बैठते उठते नहीं, कार्य बड़े रहते हैं हर वक्त। अब मुझे समझ आई है, इसलिए नहीं बेचारे बाहर निकलते कि मैं कितने भी बांगा मैनू बो आने लगता। वैसे ये बड़ी कमाल बात की है ममनून साहब ने, वाकई करप्शन की एक बदबू होती है जिसको सूंघने की हेस हमारी खत्म हो गई। अगर हम ये इसकी बदबू को महसूस भी करते रहे ना तो करप्ट बंदे आप ही रास्ते पे आ जाए। बहुत अच्छा। ये हम इसकी बदबू को नहीं महसूस करते तो इलेक्शन में फिर फैसला हम गलत करते हैं। असल में इलेक्शन से एक साल पहले करप्शन की इसी बदबू को खत्म करने के लिए एयर फ्रेशनर का छिड़काव कर दिया जाता है। बाकी और क्या, और ये जो छिड़काव है ये करने में इदारे भी शामिल हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन भी शामिल हो जाते हैं, सारे मिलजुल के फिर छिड़काव करते हैं। हाँ जी। अच्छा जी सुने, यूटिलिटी स्टोर्स पर 700 से ज्यादा अशिया की कीमतों में कमी, रियायत रमजानुल मुबारक के आखिर तक जारी रहेगी। बल्ले 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 लो जी, 700 अशिया की कीमत में रियायत का ऐलान किया इसने। हाँ जी। इन्हें जो अगर एक भी स्टोर ते लग गई तो मैनू कुटना। आप
आपने जाके जिस चीज का नाम लेना उन्होंने कहना जी ये लिस्ट में नहीं शामिल है। और अगर आपको लिस्ट में चीज दिखा के पूछेंगे कि ये चाहिए तो कहेंगे ओहो ਤੁਹਾਡੇ ਆਣ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ क्यों नहीं आਉਂਦੇ जी आजकल। इतने में वो बेचारे गाहक मियां भी आपस में लड़ पड़ते हैं। आपने देर कर दी है ना, देखा ना बिक गई सारी चीजें। मुखामत कहना शुरू हो जाता है बस वो पार्किंग करते हुए देर हो गई, ओह वेरी बैड। वो पूछते हैं गड्डी पार्क कर, नहीं दादा अबू साथ थे उनको थड़े पे पार्क किया। वो ज्यादा टुर नहीं ना सकते तो फिर किधर जाएं तो फिर उनको बाहर पार्क कर देते। अमेरिका में एक अनोखा केस, गधे को थप्पड़ मारने पर नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये हरकत हैवानात पर तशद्दुद के जुमरे में आती है, अदालत का मौका। बहुत अच्छे, मैं घबरा गया था, मैंने समझा शायद अमेरिका के किसी वजीर या गवर्नर का नाम गधा है। सदर का है यार। यार सदर की तबीयत है गधे वाली, नाम नहीं उसका, नाम तो उसका ट्रम्प है। नहीं यार, मैं सदारती उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ, उसका निशान गधा जी। अच्छा, वैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो गधे को थप्पड़ मारना हैवानात पर तशद्दुद के जुमरे में आता है, पहले ये तो बताएं कि गधा हैवानात के जुमरे में आता है? क्योंकि हम अपनी गुफ्तगू में अक्सर कुरान दफ्तरों में इतना कुछ सुनते हैं ना कि यार तुम्हें बिल्कुल खोता ही है, यार ये मुंडा भी बिल्कुल गधा ही है, यार मेरे बड़े मुंडे ने तो बिल्कुल गधे वाला साहब। हमारी गुफ्तगू में एक दूसरे को इतना को गधा कहा जाता है कि मुझे अब गधा आहिस्ता आहिस्ता इंसान लगना शुरू हो। जिसके मुंह से सारा दिन सुनते हो अपने लिए, उसका नाम बताओ। यार वो गुस्सा करती है, कहती है खबरदार शो में मेरा ये करना किया। मैं तो तुम्हारे बड़े भाई की बात कर रहा था यार। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं, मैं समझ रहा हूँ सारा। जी, डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन के म्यूजियम में लकीरें मारने के लिए 1,35,000 पाउंड की महंगी गाड़ी खड़ी कर दी गई। क्या मतलब? अवाम की जो आदतें बद पूरी करने के लिए या गुस्सा निकलवाने के लिए हुकूमत ने ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी कर दी। हाँ जी। अच्छा, ये जो गड्डी पे लकीरें मार देते हैं बच्चे, तो फिर इधर तो हार पिंड में खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी। यहाँ पे पिंड में ये सबसे बड़ा मशगला समझा जाता है। तो बेचारा शहरी बाबू चला जाए ना अगर पिंड की तरफ अपने किसी रिश्तेदार को मिलने या किधरे और काम में, लाइमन पिंड के बच्चे बकायदा इकट्ठे होके पूरी तरकीब के साथ उसकी गड्डी पे जरूर लकीरें मारते। नो काला वटा लेके तो नालो लंग है। अच्छा, ये जो शहर से गया होता है बंदा, उसकी गड्डी पे सिर्फ लकीरें बजती है। जो पिंड का चौधरी होता है उसकी गड्डी के नेड़े कोई नहीं आता, वो तो बाद में खुद लकीरें डाल देता है। अरे उसको पता भी होता है कि रशीद दा मुंडा लकीर मार दे, एक अफजल फोकू दा मुंडा लकीर मार। लकीर देख के चौधरी अंदाजा लगा देता है कि रशीद दे मुंडे दी लकीर है। हाँ जी, फिर वो उतनी लंबी लकीर नाक से सड़क पे मरवाता है। देखे ना कितने अक्लमंद है कि अवाम का गुस्सा निकालने के लिए इतनी महंगी गाड़ी खड़ी कर दी। और यहाँ अवाम का गुस्सा कैसे निकलता है जब चोर पकड़ा जाता है, हर बंदा उसको मारता है, चोरी करता है। अगर आजकल पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा निकलवाना है तो बेहतरीन तरीका ये है कि ट्रांसफार्मर उतार के जमीन पर रखो, फिर देखे लोग कैसे कैसे गुस्सा रहे, जूतियों के हार पहनाएंगे ट्रांसफार्मर पे जाके। नहीं वैसे देखो यार, मैं हैरान हो गया हूँ ये खबर सुन के कि अवाम का गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने उधर गाड़ी खड़ी की है। इसका मतलब है हर अवाम के अंदर कोई ना कोई गुस्सा मौजूद होता है। और हमारी अवाम जिसका बेचारी का हथड़ा पखा चल चल के गोटने लाओ गया उसको तो वाकई बहुत गुस्सा है। अच्छा भला रस्तालीन उर्दू स्पीकिंग बंदा भी वापडा के साथ पंजाबी में इज़हार मोहब्बत कर रहा होता है। हाँ जी, और पास से बुजुर्ग कह रहे होते हैं यार तियां भैणा लंघन डी ने तो इज़हार मोहब्बत कर। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हस्ब हाल की इस नशिस्त में हम एक केस की रोशनी में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसे फर्स्ट कजन्स जो गुज़िश्ता 17 साल से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और उनके साथ उनके वकला मोहतरम भी तशरीफ रखते हैं, मोहतरम जनाब केडी बोया और चौधरी अमानत। देखिए जुनैद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया
کہ آپ نے مجھے کافی عرصے کے بعد یاد کیا ہے. बोया साहब आपकी मेहरबानी कि आप तशरीफ लाए. دیکھیں میں بات منہ پہ کرتا ہوں, میں بالکل نہیں گھبراتا, تو یہ آپ کی مہربانی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ گزشتہ 17 سال سے یہ کیس چل رہا ہے, اٹس رانگ, یہ غلط کہا آپ. یہ 27 سال سے کیس چل رہا ہے. बोया साहब आप अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं कि मसला हल क्यों नहीं हो रहा, गड़बड़ कहाँ पे है. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تجربے کی روشنی میں کچھ نہیں بتا سکتا, کیونکہ روشنیاں تو چوری صاحب نے گل کر دی. دیکھیں نا ذرا کہ چوری صاحب نے آ کے اس کیس کو اتنا زیادہ پرولونگ کر دیا ہے کہ میرا یہ طریقہ کار بالکل نہیں. اچھا چودھری صاحب آپ کرایہ دار کے وکیل ہیں اور آپ کے ساتھ یہ مالک مکان بیٹھے ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ ان کرایہ دار صاحب نے کرائے پہ ان کا گھر حاصل کیا تھا اور اب یہ اسی گھر کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں. جی سر میرے فاضل دوست نے نہیں فاضل نہیں میرا نام کیڈی بویا ہے. وہ جی بات کرنے لگا ہوں میں جی. کرو سر جی میں یہ کہنے لگا ہوں کہ بویا جی نے جو کہا یا جو میں کہتا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں بھائی نہیں, not at all. تمہارے کہے ہوئے کہ نہیں اہمیت ہوگی, میرے کہے کہ کیوں نہیں اہمیت بھائی. بتانے لگے نا ویسا بات. اہمیت ہوتی ہے پیپر کی, کاغذات کی. یہ کاغذات کیا کہتے ہیں, اس پہ کس کا نام ہے, اس پہ کس کا انگوٹھا ہے. اور بھائی میرا نام ہی ہے رجسٹری, سب کچھ میرے نام ہے. اور مرگا وہ پراپرٹی ڈیلر جس نے اس کرایہ دار کو رکھا تھا. ایک تو آپ کا کرتا چھوٹا ہے, اوپر جھولیاں اٹھا رہے ہیں آپ. اگر میری بات سنیں میں تو بتا دوں. ایک منٹ بیٹا دموک بیٹھیں قانون کس لیے. غصہ نہیں کرنا. دموک اصل میں اسے مجبوراً مارنا پڑتا ہے, ایک موقع سے فرق نہیں پڑتا نا. اس کی جان دیکھو, جتنی دیر تک دموک نہ مارے اگلے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ وجہ ہے. صاحب بہادر جی جننے بل نے میرے نا تے آندے نے, بجلی دا بل, گیس دا بل, پانی دا بل میرے نا تے آندے نے. یس بل بھی سارے اس کے نام آتے ہیں, علامے بھی سارے اس کے نام آتے ہیں. او بھائی جی اسی کا نام پہ آنا ہے کیونکہ گھر میں یہی جو رہ رہا ہے. آپ کو دیکھیں جب کیس خراب نہ کر پتر صرف بولی جانی بولتا جو وکیل. بویا صاحب میں نے اپنے تئیں ان دونوں سے الگ الگ ملاقاتوں میں جو کیس جاننے کی کوشش کی ہے, میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ دونوں وکلا جان بوجھ کے صرف اپنی فیس کے لیے اس معاملے کو, اس کیس کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیس کا پرولونگ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ پوائنٹ از دس کہ مکان ہے میرے کلائنٹ کا. یہ شخص جو ہے یہ قابض ہوا ہے, اس نے سارے یوٹیلیٹی بل جو یہ بتا رہا ہے اس نے سارے جعلی بنوائے ہیں رشوت دے کے. لیکن جس طرح اس نے بتایا ہے کہ کاغذات کی اہمیت ہوتی ہے, یہ میرے دوست نے, فاضل میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ فاضل شکل سے یہ لگتے نہیں, تو یہ جو انہوں نے کہا کہ کاغذات کی اہمیت ہوتی ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں یہ نوٹ بھی کاغذ کا بنا ہوتا ہے, تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ وہ نوٹ والا کاغذ خرچ کے تو سارے بل جو ہیں وہ اپنے نام کروائے. صاحب ان کا موقف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پیسے خرچ کر کے جعلی رجسٹری بنوائی. بالکل صحیح پوائنٹ. تجھے موت بھول گیا. قانون ہاتھ نہیں, بس قانون ہاتھ نہیں لینا. گل پتہ کی مرنا بھول گیا تم لوگ. بھول گیا میں تو رات کی مار گولی کھاتی اثر نہیں کیتی. کوئی بات نہیں, انہوں نے اشرف پتر مینوں صرف یہ ڈرے تے تسی کدھر لڑ پے تے مینوں نہ سٹ لگ جائے. آپ کو کیا ہونا ہے بویا صاحب, مرغیاں آپ کھا گئے, بکریاں میری آپ کھا گئے, دولت میری آپ کھا گئے, کیسے لڑ رہے ہو, اولاد میرے ساتھ لڑ رہی ہے, 2500 ٹیشو کے ڈبے آپ کھا گئے. سر جی ان کی آواز میں جتنی کڑک ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہی مالک ہے. او پتر گل سن بیٹا, تو جونیئر میرے نالوں یہو جی گل نہ کر کہ کیس آپ ہی آپ ہار جاویں. بات یہ ہے جنید صاحب کہ اگر کڑک سے مالک بنتا ہو گھر کا تو اس طرح تو پھر ادھے پاکستان دا مالک سلطان ہی مرحوم سی, کیونکہ جیسی کڑک او دے آواز سی ایسی کڑک تو کسی نے بھی نہیں آئی. نہیں پھر بھی لہجے کی سچائی تو میٹر کرتی ہے نا. اور جی لہجہ دا بھی بڑا کڑکدار سی. اصل چی بیچارہ پنڈو آیا ہے, لاری اڈے اترے ہے, اوتھے ریڑھی تو چاول کھا کے اتوں ٹھنڈا پانی پی بیٹھے. ایدی کڑک اوتھے ختم ہوئی ہے لاری اڈے.
सर जी इनको तो लड़ते हुए हो गए 27 साल। आप ये देखें कि कागजात क्या कहते हैं, ये देखें इसमें सारा रिकॉर्ड है, सारा इसमें इसका जो साइन है, इसमें इसके जो अंगूठे लगे हुए सारे, और वीडियो है इसमें, तस्वीरें, हर कतरीना की तस्वीर है, करीना की तस्वीर है, पता कौन क्या नाम है उसका, सारे रिकॉर्ड मौजूद है जी। ओ बेटा आप गल सुन, एक केस अपने क्लाइंट दा लड़न आया या सलमान खान दा लड़न आया? ये सारियां सलमान खान दी मशूकां दी फोटोआं लई फिरने। गोया साहब आप जमीन का केस है, आप मेरे से सीधे रहे। साहब उनका मौकफ ये है कि कागजात पे उनके अंगूठे के निशान मौजूद है। ओए बंदा बड़ा मौका है तू। आधा किलो दही की 2 चमचियां शक्कर भैया। देखिए ये अंगूठों के निशान बड़ा मजबूत पहलू है। केड़े अंगूठे भाई जी? बैठ जाओ। ये बच्चा देखो तो सही, ये तो पैर दा अंगूठा लाए तो लगदा हाथ वाली शीशी दा लगा है। मेरे क्लाइंट को नर्वस किया जा रहा है। यस ये नर्वस किया जा ਇਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ है ही नहीं। हाँ जे कहे कि कागज ते पंजियां दे निशान ने, वो मैं मान लेना। गोया साहब मैं मानता हूं कि मैं जूनियर हूं आपसे, जूनियर हूं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट भी केस को कहां से कहां ले जाता है। हाँ जी, हाँ जी, छोटे से पॉइंट से गैस लीक हो रही थी, पास इन्होंने सिगरेट लगाया तो देखे कहां से कहां पहुंच गए। मेरे फाजल दोस्त केस हारता हुआ देखकर जातियात पे उतर आए। बेटा फाजल हार रहे होने, बोया नहीं कभी केस हारे। ये हारेंगे, वो बोए दा केस मुकेगा ते हारेगा ना। ये क्या कह रहे हैं बोया साहब? घबराना सिर्फ तू अल्लाह ना करे, अगर मकान दा केस हार भी गया ना, तेनू मैं शहरों यहो जी आइसक्रीम खुआनी है, तू मकान भूल जाने। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज क्या स्टोरी है कवाली में आपके पास? भाई आज जो कवाली के अंदर स्टोरी खींच रहे हैं, आप जानते ही हैं कि गर्मी किस कदर शदीद पड़ रही है। अल्लाह माफ करे। और इस गर्मी के पड़ते ही बाकी हर चीज जहां बुरी लग रही होती है, वहां पे खवातीन के लॉन की खरीदो फरोख्त भी मर्द को बहुत बुरी लग रही होती है। वाह क्या खूबसूरत। इस गर्मी से जहां तंग आके शायर ये कहता है, तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए मुखालिफ से न घबरा ए उकाब। वापड़ा गर्मी के आते ही क्यों बन जाए कसाब। असल बात। अरे कहां छुरी फेर दी। इसी गर्मी की शिद्दत में खामिंद बेचारा क्या कह रहा है जी। हो चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना, के गर्मी दा फिर सीजन लंघना, तू पैसा शॉपिंग करन ली मंगना। चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना। तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए उका। क्या कहने? हर बीवी अपने खामद को समझती है नवा। क्या कहने? लग गई हर थां लॉन, किसे ले सस्ते सूट मिलेंगे ले ले। ओ लग गई हर थां लॉन, किसे ले सस्ते सूट मिलेंगे ले ले। जुमला ये दिन रात सुनाए, बेगम पीछे ही पड़ जाए। ओ बेगम पीछे ही बढ़ जाए। कि मुश्किल है फरमाइश का टलना। चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना। तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए उका। ये बात मुखालिफ से ना घबराए उकाब। सोने देता नहीं शब्बर ये नाइट पैकेज का आजाद। अरे वाह।
और उस पर ये भी साथ सुनाए, सारे शॉपिंग कर भी आए। उस पर ये भी साथ सुनाए, सारे शॉपिंग कर भी आए। नंद ने ब्रांड के सूट खरीदे 30,000 के सीधे सीधे, 30,000 के सीधे सीधे। अब तो बनता है मेरा भी मंगना, चल मेरे मखना, ओ चल मेरे मखना, ओ चल मेरे मखना। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, फेसबुक पर यूं चिपक के बैठे जैसे मिलता हो सवाब। अरे वाह, कौन कौन सवाब कमा रहा है? नस्ल सीधी करने वाली बात की उस्ताद ने। और लेडीज ऐसे सारी पहुंचे जैसे बटने लगी हों देगे। लेडीज ऐसे सारी पहुंचे जैसे बटने लगी हो देगे। किसमें जुर्त नानू डके, एक दूजी को मारे धक्के। एक दूजी को मारे धक्के। मुहज्जब बन के कुछ नहीं लबना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए का। उस्ताद, इस शेर का मतलब घर जाकर समझाना है मुझे। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए का। नैब की गुफ्तगू में मजाक लगता है लफ्ज एतसाब। क्या क्या दिया उस्ताद? हर घर में है ये फरमाइशें, ज्यादा सूट नहीं हम मांगे। हर घर में है ये फरमाइशें, ज्यादा सूट नहीं हम मांगे। इतने तो बनते हैं, ला दो 10-12 ही सूट सिला दो। 10-12 ही सूट सिला दो। इनसे कम में कुछ नहीं बनना, चल मेरे मखना, 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 चल मेरे मखना। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए का। इस क्वाली का हमारा एंकर घर जाके देगा जवाब। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।